آغاز میں خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا 30واں اجلاس ہے۔ سال 2023-24 کی سالانہ اور ضمنی بجٹ کی منظوری کی توثیق کر دی گئی ہے، جبکہ 20,000 الیکٹرک بائک کی فراہمی کے پروجیکٹ کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اڈیالہ جیل میں ٹرائل کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اس متعلق کہنا ہے کہ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ کا ٹرائل بنیادوں پر آغاز کیا جائے گا۔ بات کریں گے بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کیبنٹ کا 30واں اجلاس ہوا، جس میں 7 اہم فیصلے لیے گئے۔ پہلا فیصلہ یہ لیا گیا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل ٹرائل کی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے، اور دوسرا فیصلہ جسے عام ترین تصور کر رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، کہ انہوں نے لاہور نالج پارک کی زمین سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سپرد کرنے کی منظوری دی ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا آئی ٹی سینٹر بنانے کی جو ہے وہ لیے اراضی CPD کو منتقل کی جائے گی۔ مریم نواز شریف کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان کا پہلا آئی ٹی CPD بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں فلم CPD بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بینک کی طرف سے 20,000 الیکٹرک بائک کی فراہمی کے پروجیکٹ کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ CEO پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ڈیپوٹیشن پر تعیناتی میں توسیع کا خودی فیصلہ کرتے ہوئے اس کی بھی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل سیکریٹریٹ میں حکومت پنجاب کی گریڈ 19 کی اسامی کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایئر ایمبولینس کے حوالے سے 2 ہیلی کاپٹر جو ایئر ایمبولینس کی طرف سے ہوں گے وہ خریدنے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے، اس کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا۔ پنجاب میں لا آفیسر کی تعداد 66 کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے، اور مریم نواز شریف نے آج کے اجلاس میں 3 اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی سفارش کی ہے نہ کروں گی، کسی افسر کو لگانے کے لیے نہیں کہا، اور سرکاری ملازمت میں کرپشن، سیاسی وابستگی اور نااہلی برداشت بھی نہیں کی جائے گی، اور یہ کہا کہ ہمیں صرف میرٹ پر کام کرنا ہے، جو کام نہیں کرے گا اس کی جو ہے وہ پنجاب میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ حسن۔ سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا دوسرا روز ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی ثبوتیں کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز 14 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کروایا۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، جی بالکل، سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج دوسرا روز ہے۔ پہلے مرحلے میں 14 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کیا گیا تھا۔ لیگی رہنما پرویز رشید، مصدق ملک، انوشے رحمان، مصطفیٰ رمدے، محمد اورنگزیب سمیت جو کل 14 امیدوار تھے، انہوں نے اپنی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کروایا، جس میں سنی اتحاد کونسل کے ولید اقبال، زلفی بخاری، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل گزشتہ روز مکمل ہوا تھا۔ تو آج دوسرا روز ہے، اور آج مزید 14 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہوگا، جس کے بعد امیدواروں کی جو فہرست ہے وہ اویزا کی جائے گی، جس میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن فہرست اویزا کرے گا، اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ٹریبیونل قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ٹریبیونل کے جب فیصلے آئیں گے تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن ختمی فہرست امیدواروں کی جاری کرے گا، اور پھر 2 اپریل کو سینٹ کے انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز ہوگا۔ تو آج اس حوالے سے دوسرا مرحلہ ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا، اور مزید 14 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اشفاق۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل کالجز کے سربراہان کی تعیناتی کا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے تعیناتی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینی ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے MS کے لیے انٹرویو کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلمان رفیع کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو وہیں صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ اسی پر بات کریں گے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائیے۔ بالکل، آخر کار جو ہے وہ 5 سال بعد پچھلی حکومت نے جو ہے وہ مستقل MS لگانے کا پروگرام تشکیل دیا ہے، جس سے قبل 4 سے 5 مرتبہ جو ہے وہ اس پر ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے، لیکن حال جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لیکن
लेकिन मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सरबराहों की तैनाती के लिए अब कमेटियां तश्कील दे दी हैं। टीचिंग अस्पतालों के एमएस के लिए इंटू के लिए 9 मेंबरी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। कमेटी की सरबराही वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक कर रहे हैं। इसी तरह सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर, स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन जो है वो भी मेंबर नामजद हुए हैं। साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर राहत परेज, प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर ज़हरा खानम, प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फराह भी इसकी मेंबर होंगी। डायरेक्टर IRMNCS से डॉक्टर मोहम्मद खलील और DD ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सहेल भी इस कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी डॉक्टरों के MS के पोस्ट के लिए जो है वो इंटरव्यू करेगी। मेडिकल कॉलेज के सरबराह की तैनाती के लिए सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो कमेटी के सरबराह होंगे। इसमें सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ के ख्वाजा इमरान नज़ीर, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एजुकेशन और इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, प्रोफेसर ईद मोहम्मद और साबिक VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। पंजाब में 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात का मामला, पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब में कोई उम्मीदवार खड़ा ना करने का फैसला है। पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को ही सपोर्ट करेगी। पंजाब में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 14 हलकों में ये ज़िमनी इंतखाब होगा। बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताएं कि पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का फैसला है। आज बिल्कुल पंजाब में 21 अप्रैल को जो ज़मीनी इंतखाब होने जा रहे हैं उसमें 12 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि जहां पर कोई कैंडिडेट नहीं पुट किया जाएगा और मुस्लिम लीग की उम्मीदवारों को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। अलबत्ता सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेटर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे और उनकी कौमी असम्बली की मुल्तान की नशिस्त खाली हो जाएगी, जब उसका इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो जवाब में मुस्लिम लीग जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की खाली करदा नशिस्त पर जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट देगी और वहाँ पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं देगी। जो 21 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के 14 हल्कों में उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और जब यूसुफ रज़ा गिलानी की नशिस्त खाली होगी और उसका इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो तब मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को जवाब में सपोर्ट करेगी। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2023-24 के लिए 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट ऐवान में पेश कर दिया है। तालीम के लिए 596 अरब जबकि सेहत के लिए 473 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया है। तालिब इल्मों को भी लैपटॉप मिलेंगे और 5 अरब रुपए से अपनी छत अपना घर का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब का आइंदा 3 माह और गुज़श्ता 9 माह का बजट पंजाब असम्बली में पेश। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट ऐवान में पेश किया। बजट में कुल आमदन का तखमीना 3,331 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया। बजट में कुल आमदन का तखमीना 3,331 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। माली साल 2023-24 के लिए तरक्याती बजट 655 अरब रुपए होगा। सेहत के लिए 473.6, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस, तामीरात के लिए 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127.7 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए, मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए 12.5 अरब रुपए मुख्तस। गंदम के कर्जा की अदायगी के लिए 264 अरब रुपए रखे गए हैं। 25.6 अरब रुपए ज़राअत पर सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए हैं। 513 अरब 73 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में रखे गए हैं। सहाफ़ियों के लिए 1 अरब की लागत से जर्नलिस्ट एंडोरमेंट फंड के क्याम का भी ऐलान। NFC अवार्ड के तहत वफाक के काबिल तकसीम हासिल से सूबा पंजाब को 2,706 अरब 40 करोड़ रुपए हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में गुज़श्ता माली साल से 25% इजाफे के साथ 625 अरब 30 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। महकमा एक्साइज से 5% इजाफे के साथ 45 अरब 50 करोड़ रुपए महसूलात की वसूली मुतवक्के है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 42% इजाफे के साथ 231 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 26% इजाफे के साथ 240 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 4% इजाफे के साथ 99 अरब 20 करोड़ रुपए हासिल होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि 10 अरब रुपए की लागत से
पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाशीफ IT सिटी का लाहौर में क्याम अमल में लाया जाएगा। 1 अरब रुपए से पंजाब में मुफ्त वाईफाई फराहम करने का प्रोग्राम बनाया गया है। 40 अरब रुपए से देही मराकज सेहत और बुनियादी मराकज सेहत की मुकम्मल ओवरहालिंग के 4 प्रोग्राम शुरू होंगे। पहली बार मोटरवेज पर 70 करोड़ रुपए की लागत से एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। 30 अरब रुपए की लागत से लाहौर में नवाशीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च अस्पताल बनेगा। 10 अरब रुपए की लागत से सरगोदा में नवाशीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से अमराज कलब का जदीद अस्पताल कायम किया जाएगा। तालिब इल्मों को लैपटॉप फराहम करने के लिए 1.5 अरब रुपए रखे गए हैं। 320 अरब रुपए से 82 सड़कों की तामीर और मरम्मत का बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पंजाब रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 अरब रुपए मुख्तसर तक बजट में 5 अरब रुपए से अपनी छत अपना घर का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में 1 लाख घर बनाए जाएंगे। 2 अरब रुपए इलेक्ट्रिक बसों, 1 अरब रुपए इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के मंसूबे पर खर्च होंगे। साफ सुथरा पंजाब के तहत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब के ऐवान में ज़िमनी बजट 2023-24 भी पेश कर दिया गया। सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 232 के हवाले से फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आर्टिकल 232 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की जानिब से इस केस पर समाअत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस केस के हवाले से। सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 साल तक के लिए का ये मामला था और इस पर आज समाअत भी हुई, जबकि वकील वफाकी हुकूमत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 232 के हवाले से फैसला भी दे चुकी हैं। सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 232 के हवाले से फैसला दे चुकी है और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आर्टिकल 232 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। FIA ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया है। कान्हा में फैक्ट्री पर छापा, बिजली चोरी पकड़ी गई है और बिजली चोरी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर भी कब्जे में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ कर दिया है। कान्हा में फैक्ट्री पर छापा और बिजली चोरी पकड़ी गई हैं। बिजली चोरी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर भी कब्जे में ले लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, FIA ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज़ कर दिया है। कान्हा में फैक्ट्री पर छापा मारा गया और इस छापे के दौरान बिजली चोरी को पकड़ लिया गया है। बिजली चोरी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर भी कब्जे में ले लिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और FIA ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ कर दिया है। कान्हा में फैक्ट्री पर छापा मारा गया। LDA ने वास्ता की हदूद में तरक्याती कामों में मुदाखलत शुरू कर दी है। LDA ने वास्ता की हदूद में सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन्स डालने का मंसूबा बना लिया है। LDA की जानिब से फैसल टाउन में 14 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम भी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। लाहौर के तरक्याती इदारों की जानिब से एक दूसरे की हदूद में मुबैना तौर पर मुदाखलत की जा रही है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी ही एजेंसी वासा की हदूद में तरक्याती कामों की मद में मुदाखलत शुरू कर दी है। LDA ने वासा की हदूद में सीवरेज और वाटर सप्लाई डालने का मंसूबा बना लिया है। दूसरी जानिब वासा एक्ट 1976 और सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से जो मरासला लिखा गया उसमें किसी भी तरक्याती इदारे को वासा की हदूद में वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने से रोक दिया गया था और कानून के मुताबिक सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम करने का मैंडेट भी वासा के पास है, लेकिन LDA ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वासा के काम भी खुद करना शुरू कर दिए हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि LDA ने फैसल टाउन C ब्लॉक और D ब्लॉक में सीवरेज और वाटर सप्लाई बिछाने का प्लान बनाया है और 14 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से ये सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि माजी में भी LDA इंतजामिया की तरफ से मुबैना तौर पर वासा की हदूद में काम किए गए। LDA ने अज खुद टेंडर लगाकर ये तामीराती काम मुकम्मल कर लिए। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।